Hello children, welcome to maths video class. Children, I'm sure you all are practicing the exercises that we are doing in our video classes. You must be watching the videos and you know that we are doing unit 1, that is 3-digit numbers in your maths textbook. Children, in this unit we have so far completed many of the exercises like forward counting from 101 to 1000. We have completed numbers, what comes after, what comes before, what comes in between. Then we have completed expanded form, short form, number names, activity worksheet 1, place value, face value. All these exercises we have completed, isn't it? And in my past video, we completed a formation of numbers also. So it's time for activity worksheet 2. Activity worksheet 2. In my previous video, I just introduced this activity sheet. इसका एक part मैंने start किया था. And today's this video we will be completing this exercise. इस exercise को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे. Activity worksheet 2 को हम कोशिश करेंगे कि पूरा कर सकें. So without wasting time, let's start with question 1. Children, question 1 का A part we have already done. A part of question 1 we have done in my previous video. Let's revise that and then we'll start with the new exercises. Children, question 1 is write the correct numeral against it. Write the correct numeral write the correct numeral against each. Children, as I told you that numeral means number. Numeral is called number. So you have to write correct number against each of the that grid given. As you can see in your worksheet, which is given on page number 33, you can see some grids are there. ऐसा horizontal और vertical lines के साथ बना हुआ है. And 100 blocks are there. उसके अंदर 100 चेक्स बने हुए हैं. इस तरह से चेक्स बने हुए हैं, है ना. इट मीन्स यहां से भी 10 और यहां से भी 10 एंड टोटल 100. ये पूरा जो ग्रिड है इट इज ऑफ 100 स्क्वायर्स. इसमें 100 स्क्वायर्स हैं. टोटल ये 100 हैं. ऐसे ही 5 ग्रिड्स आर गिवन. 2, then 3, then 4 and one more 5. इसी तरह के 5 ग्रिड्स दिए हैं. आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ ऑल दीज ग्रिड. आई हैव जस्ट गिवन यू एन एग्जाम्पल. यहाँ पे एक मैंने आपको करके दिखा दिया है. सेम ऐसा ही 5 दिए हुए हैं. उसके अलावा 10 का 2 ब्लॉक्स हैं. 2 ब्लॉक्स आर ऑफ 10 स्क्वायर्स. ओके, आई हैव ड्रॉन रफली, एक ऐसे रफली आपको बना दिया है आपके लिए. तो दिस इज ऑफ 100, दिस इज अगेन ऑफ 100, दिस इज ऑल्सो ऑफ 100, दिस इज ऑल्सो ऑफ 100 एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ 100. ये सारे 100 के हैं. सब में 100 स्क्वायर्स हैं. 10 by 10. यहां से भी 10 और यहां से भी 10. टोटल 100 है. ठीक है, तो हमारे पास कितने 100 हो गए? 1, 200, 300, 400 एंड 500. हमारे पास कितने 100 हो गए? वी हैव नाउ 500. हमारे पास 500 हो गए हैं. और कितने 10 है? 1 10 एंड 2 10. 500 है एंड 2 10 है. 2 10 मतलब 20. 2 10 का मतलब 20. तो टोटल कितना हुआ? हमारा न्यूमरल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 500 and
100 की जगह पे 5, 10 की जगह पे 2 और 1 हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे 0. नाउ वी विल रीड दिस एज 520. 520. Okay, this is the A part. Now going to the B part. We'll do the B part. Children, B part also has some grid. B में भी ऐसे ही grid बना हुआ है. 1, 2, 3 and 4. B में 4 ऐसे ग्रिड्स बने हुए हैं. अगेन विथ सेम वही 100 का है, 100 स्क्वायर्स वाला. ऐसे ही बाकी के 4 भी ऐसे ही है, बाकी के 4 भी सेम ऐसा ही है. दिस कंसिस्ट ऑफ 100 स्क्वायर्स. तो 100 अगेन 100 अगेन 100 एंड देन अगेन 100. इतने हमारे पास 100 वाले कितने हो गए? 4. 1 2 3 4. फिर हमारे पास है एक जो स्ट्रिप है वो 10 की है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. एक हमारे पास जो स्ट्रिप है वो 10 की है और उसके बाद 2 हमारे पास ऐसे सिंगल है. ओके, नाउ वी हैव टू राइट द न्यूमरल. अब हमें यहाँ पर न्यूमरल उसका लिखना है. which what number we should write here. So we have to see how many hundreds are there. 1 2 3 and 4. 100 कितने हैं हमारे पास? 4. टेंस कितने हैं? 10 का स्ट्रिप कितना है? 1. एक ऐसा है जिसमें कि 10 स्ट्रिप है. 10 जो है वो ब्लॉक्स बने हुए हैं, 10 बॉक्सेस बने हैं. तो 10 हमारे पास कितना है? 1. 1 हमारे पास कितने हैं? सिंगल कितने हैं? 1 and 2. Right? 2. And the number is 412. This is 400. 10 plus 2 is 12. 100, 200, 300, 400. 400 में ये 10 and 10 plus 2, 12. So the number is 412. 412. This is the first question. Now moving on to the second question. अब हम करेंगे second question. ठीक है, इसका अब हम second question करेंगे. Now children, question 2 is, let me wrap this. Question 2. Question number 2 is match the number. You can see in your book it is on page number 33. As I have told you, it is on page number 33. Match the numbers. Match the number with its number name. With its number name. Match the number with its number name. Number name is the spelling of the number. Okay, so you have to match the number with its spelling. Okay, so let's do. First one is 770, which is 770. We read it 770. Second is 515, and we read it 515. 515. Then it is 882, and we read it 882. 882. Next is 446. 446, and it is 446.
446. Now let's write the number names. I will write the number names this side. 8, EIGHT 8, थोड़ा सा और साइड से लिखना पड़ेगा. EIGHT 8, HUNDRED 100, EIGHTY 80 and TWO 2, 882. Next spelling is 770. 770. 770. Next is 446. 446. FORTY 40 SIX 6. 446. Next is 515. FIVE 5 HUNDRED 100 FIF TEEN. Okay, now let's match it. We have written the spellings also. Now let's match it. Children, first number is 770. Now here which number name starts with 7? SEVEN 7, HUNDRED 100 and 70. So this we will match with this 770. Okay. Next is 515. 10 plus 5 15 है ना, ये 100 है, ये 10 है, ये 1 है. 515. So 5 वाला कौन सा है? This 515. Okay. Next is 882, which is 882. तो 800 वाला हमारा कौन सा नंबर नेम है? This 882. 882. And finally 446, which is 446. 446. So we have done question second also, which was related to numbers and their spellings. Numbers and number names. Okay. Next question. Complete the expanded form. Question number 3 is complete the expanded form. EXPANDED. Expanded. FORM. Children, we have already done exercises of expanded form. हम पहले ही कर चुके हैं expanded form वाली exercise. Okay, so we know that how to do it. आता है ना हमें? 4 1 5 and it is written 400 plus blank plus blank. Okay, now you have to complete it. अब इसको आप पूरा करेंगे. ठीक है, कैसे पूरा करेंगे? ओके, 400 है. व्हाट इज द प्लेस ऑफ दिस वंस? ये वंस कौन सी जगह पर है? टेंस की जगह पर है. वंस किसकी जगह पे है? टेंस की जगह पे. 1 टेंस मतलब 1 10. तो वी विल राइट हियर 1 10. एंड हाउ मेनी वंस आर देयर? कितने वंस है हमारे पास? 5. 5 हमारे पास वंस है. 5 वंस मीन्स 5. 5 वन जा 5. 5 वंस मतलब 5. सिंगल हमारे पास कितने हैं? 5 है. इसका मतलब 5 का 5 ही रहेगा. ओके, नेक्स्ट बी.
बी है हमारा 5, 3, 9 and here dash plus 9. Now you have to do this. 9 is already written, so we have to fill these two blanks. Children, this 5 is at the place of hundreds. 5 hundreds की place पर है, इसलिए ये 5 क्या है, 100 है. 5 100 की place पर है, इसलिए 5 100 है. 3 tens की place पर है, इसलिए वो 3 tens है, मतलब 30 है. 3 tens मतलब 30. तो 3 tens की प्लेस पर है 30, 500 की प्लेस पर है, इसलिए 500. तो 539. 539. नेक्स्ट 803 and here dash plus dash. 803. चिल्ड्रन, यहां पर 2 ही ब्लैंक दिए हैं. क्यों? क्योंकि ये वंस, ये टेंस, ये 100 है, तो टेंस की जगह पे कोई नंबर नहीं है, सो वी विल लीव दैट. तो 100 की प्लेस पर क्या है, 8 है. 8 100 की प्लेस पर है, इसलिए हम इसको बोलेंगे 800. ओके. और टेंस कुछ नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिया है. और वंस कितना है, 3. 3 वंस मतलब 3. तो 803. कितना हुआ ये, 803. नेक्स्ट इज D 776 dash plus 70 plus dash. Now let's check. This is ones, this is tens, this is 100. 6 क्या है, ones है. 6 ones मतलब 6. This 7 is tens. 7 tens मतलब 70, which is already written. Now next, this 7 is at hundreds place. तो 700 की प्लेस पर है, इसलिए वो 700 है. तो यहां पर लिखेंगे 700. Now 776. 776. Okay. So with this we completed question number 3 also. हमने question number 3 भी अब हमने complete कर लिया. Okay. Now question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स. ये फिल इन द ब्लैंक्स है, नॉर्मल जो फिल इन द ब्लैंक्स है वैसा ही है. इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट द प्लेस वैल्यूज. दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेटेड टू प्लेस वैल्यूज. सो लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. फिल इन द ब्लैंक्स. Fill in the blanks. And the first one is the place value of 7 in 978 is blank. Now, in this sentence, in this statement, what you have to write? You have to write the place value. क्या लिखना है? Place value लिखना है. किसकी place value लिखनी है? 7 की. कौन से नंबर में? ये 978 में. 978 में जो ये 7 है, इसकी place value क्या है? What is the place value of 7? Children, first check the place of 7. 7 कौन सी प्लेस पर है? 7 जो है वो टेंस की प्लेस पर है ना, वंस टेंस. 7 जो है वो टेंस की प्लेस पर है, तो 7 टेंस हुआ. 7 टेंस मतलब 70. 7 टेंस
मतलब 70. So place value of 7 is 70. Place value of 7 is 70. Okay. Now moving on to the B part. B, sentence number B. The digit 2 in 6 to 8, the digit in 6 to 8 is in blank place. Is in blank place. The digit 2 in 6 to 8 is in blank place, and the digit 6 is in blank place. यहां पर आपको प्लेस वैल्यू नहीं बताना है, सिर्फ आपको प्लेस बताना है. किसका प्लेस बताना है? 2 का और 6 का प्लेस बताना है. 2 का प्लेस इस नंबर में क्या है और 6 का प्लेस इस नंबर में क्या है. 2 और 6 दोनों का आपको क्या बताना है? प्लेस बताना है. ठीक है, तो पहले हम 2 का प्लेस देखते हैं. 2 का प्लेस क्या है? वंस एंड टेंस. 2 का प्लेस क्या है? टेंस है. तो TENS. The digit 2 is ठीक है. The digit 2 in 628 is in tens place. This 2 is in tens place, and the digit 6 is in hundreds place. Digit 6 is in hundreds place. 2 tens की प्लेस पर है और 6 hundreds की प्लेस पर है. ओके. नाउ C. Sentence C is the numbers formed by using 6 and 4 digits only once are dash and dash. ये इसका मतलब क्या है? The numbers formed by using 6 and 4 digits only once are this and this. मतलब 6 और 4 ये दो नंबर्स है हमारे पास, 2 डिजिट्स हैं, 6 है और 4 है. इन दोनों को यूज करके आपको 2 डिजिट नंबर बनाने हैं. कितने डिजिट नंबर बनाने हैं? 2 डिजिट नंबर. दो इट इज नॉट मेंशन्ड हियर, लेकिन यहाँ पे लिखा ओनली वंस. आपको एक ही बार यूज करना है. 6 को भी नंबर फॉर्म करते समय एक बार यूज करना है. 4 को भी कोई नंबर फॉर्म करते समय आपको एक ही बार यूज करना है. यू डू नॉट हैव टू रिपीट. यू शुड नॉट रिपीट द नंबर्स. द नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग 6 and 4 ओनली वंस. सिर्फ एक बार आपको यूज करना है 6 और एक बार यूज करना है 4. तो आप कौन से 2 नंबर्स बना सकते हैं? 2 डिजिट वाले नंबर्स ही बनेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पास 2 ही नंबर हैं. तो हम 2 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं. पहला नंबर हम बना सकते हैं 6 and 4. 6 और 4 को एक साथ लिखेंगे तो हो गया 64. यहाँ पे 6 भी एक ही बार लिखा है और 4 भी एक ही बार लिखा है. तो हमारा नंबर क्या बना? नंबर हमारा बना 64. नंबर इज 64. और दूसरा नंबर क्या बन सकता है? 4, 6, 46. इस नंबर में भी 4 एक ही बार लिखा है और 6 को भी एक ही बार लिखा है. तो दूसरा नंबर हमारा बना 46. 64 and 46. ये 2 हमारे नंबर्स बने बाय यूजिंग द डिजिट्स 6 and 4. ओके.
सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया. दिस इज ऑल्सो डन. अब हम करेंगे क्वेश्चन 5. Question number 5. That's right. क्या है ये? Using each of the digits 7, 5, 4 only once, write the numbers that show 5 at hundreds place. मतलब क्या करना है आपको? डिजिट्स 7, 5, 4 को बिना रिपीट किए आपको इस तरह से एक नंबर फ्रेम करना है जिसमें कि 5 100 की प्लेस पर आए. 5 शुड बी एट हंड्रेड्स प्लेस. ठीक है. क्वेश्चन है यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स 7, 5 and 4 only once. मतलब आपको रिपीट नहीं करना, एक एक बार ही आपको यूज करना है. 7 को भी एक ही बार, 5 को भी एक ही बार और 4 को भी एक ही बार. यू नीड नॉट हैव टू रिपीट द नंबर. कोई भी नंबर आप रिपीट आपको नहीं करना है. और आपको क्या करना है? राइट द नंबर number that show 5 at hundreds place. ओके. आपको 5 को 100 की प्लेस पे शो करना, मतलब आपको एक 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है. सिंपली आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है जिसमें कि 5 जो है वो 100 की प्लेस पर होगा. ठीक है. तो सबसे पहले आप 5 को ले दीजिए 100 की प्लेस पर. अब हमारे पास कौन से नंबर बचे? 7 and 4. तो हम यहाँ पर 7 and 4 लिख दिया हमने. हो गया. अब हमारा 5 कहाँ पर है? 100 की प्लेस पर है. ठीक है. उससे कोई मतलब नहीं है कि 7 और 4 कौन सी प्लेस पर, सिर्फ हमको 5 को 100 की प्लेस पर शो करना है. तो हम पहले 5 को 100 की प्लेस पर शो कर देंगे और बाकी के 2 डिजिट्स हम लिख देंगे. इधर हम 4 7 लिखे या 7 4 लिखे, दैट डजंट मेक डिफरेंस. या तो 7 4 लिखो या 4 7 लिखो. द क्वेश्चन सेज दैट कि 5 100 की प्लेस पे होना चाहिए. तो यहाँ पर हमारा 5 जो है वो 100 की प्लेस पर हो गया है. ठीक है. बी पार्ट. बी क्या है इसका? encircle the house number which has 4 hundreds and 2 ones. Now children, some numbers are given. कुछ numbers दिए हुए हैं और आपको उस हाउस नंबर को एनसर्कल करना है, उसको गोला लगाना है जिसमें 4 जो है वो 100 की प्लेस पर है और 2 जो है वो ones की प्लेस पर है. So let's see the option. हमारे पास है 2 4 6, then 4 2 6, then 6 2 4, then 6 4 2 and 2 6 4. एक नंबर मिस हो गया. 6 2 4 and 4 6
2 6 4 2 and 2 6 4. These are the numbers we have. 6 नंबर हमारे पास 246 246, 426 मतलब 426, 624 मतलब 624, 462 मतलब 462, 642 is 642 and 264 is 264. Okay. नाउ इसमें हमें वो नंबर ढूंढना है जिसमें कि 400 की प्लेस पर है. इन कौन सी नंबर है जिसमें कि 400 की प्लेस पर है? एक नंबर ये है और एक नंबर ये है. इन दोनों में 4 जो है वो 100 की प्लेस पर है. लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है कि 2 जो है वो वंस की प्लेस पर होना चाहिए. तो यहाँ पर 2 टेंस की प्लेस पर है. ये नहीं हो सकता. इट मीन्स ये यहाँ पर 2 जो है वो वंस की प्लेस पर है. इट मीन्स दिस इज द हाउस नंबर वी हैव टू एनसर्कल, क्योंकि इसमें 4 जो है वो 100 की प्लेस पर है और 2 जो है वो वंस की प्लेस पर. एज पर द क्वेश्चन 4 को 100 की प्लेस पे होना है और 2 को वंस की प्लेस पे होना है. तो वी हैव सीन दिस नंबर. चिल्ड्रन, इसी के साथ ही हमारा जो ये एक्टिविटी वर्कशीट 2 है वो हमने कंप्लीट कर लिया. ओके, वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी वर्कशीट 2. देन आज की वीडियो के लिए इतना ही. हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे एंड इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज ऑफ द सेम यूनिट. इसी यूनिट का हम एक नया एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे और ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा. कोई डाउट है यू कैन क्लियर दैट डाउट एंड नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. Thank you.